Good morning, dear students. Standard 12 Science, chapter number 13, Nucleus. Today we have discussed last topic, nuclear chain reaction, and some difficulties and solutions. From the fission of nucleus by a single neutrons, more than one neutrons are released. Average 2.5 neutrons. Average 2.5 neutrons are released per fission of uranium. Averagely 2.5 neutrons are released per fission of uranium nucleus. It is a fraction since in some fissions events 2 neutrons are produced in some 3. Now difficulties, first difficulties, the neutron produced in the fission of uranium 92 to 35 in fast neutron. यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत फास्ट न्यूट्रॉन्स है क्योंकि उसके साथ जो एनर्जीज है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो इट्स अ वेरी फास्ट न्यूट्रॉन्स, तो उसको स्लो करने पड़ेंगे. तो इफ न्यूट्रॉन्स आर नॉट स्लो डाउन देन दे एग्जिस्ट विदाउट इंटरेक्टिंग द चेन रिएक्शन. अगर वो इंटरेक्ट करे बिना वो बाहर चले जाए तो वो रिएक्शन बंद हो जाएगी. तो उसके लिए हम यूज करेंगे मॉडरेटर. मॉडरेटर and for example we can used water, heavy water and graphite. Heavy water and graphite are used as a moderator. Remember it, moderator वो न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता. और न्यूट्रॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बी डिक्रीज्ड and energy becomes decreased, so neutrons can be slowed down. और वो जो slower neutrons है are incident on fission fragments and convert into two more fission fragments and so on. Reaction will be continue and this type of reaction is chain reaction. तो second number difficulty is a number of fissions produced by given generation of neutrons to the number of fissions on preceding generations may be greater than 1 and this ratio is known as multiplication factor. Remember it, multiplication factor is denoted by K. What is K? तो ratio है, ratio of number of fission neutrons produced in the reaction to the incident neutrons on the elements, and this ratio is known as multiplication factor. If multiplication factor becomes 1, so the reactor is said to be critical. If K greater than 1, so the reactor will becomes supercritical, and if K less than 1, then the reactor will becomes subcritical. If K is equals to 1, so the reactor is said to be critical. K greater than 1, so reactor will become supercritical, and K less than 1, so the reactor will become subcritical. Number 3. If the value of K is greater than 1, so the rods by themselves more inside the reactor and the value of the K is less than 1. And these rods is known as controlling rods. कंट्रोलिंग रॉड्स के एग्जाम्पल है बोरॉन एंड कैडमियम. बोरॉन एंड कैडमियम वॉज द कंट्रोलिंग रॉड्स, और ये जो कंट्रोलिंग रॉड्स है वो जो एडिशनल न्यूट्रॉन्स है वो एडिशनल फ्यूजन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे. रिपीट कर रहे हैं हम, मॉडरेटर क्या करेगा, न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करेगा. बट ये जो कंट्रोलिंग रॉड्स है वो पूरे न्यूट्रॉन्स को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नंबर 4. इन अ चेन रिएक्शन heat energy is produced and the temperature is likely to become 10⁶ Kelvin, and for this coolant are used. For example gases, water and molten sodium.
gases, water and molten sodium are used as a coolant. क्योंकि ये जो चेन रिएक्शन हो रही है वो रिएक्टर के अंदर होगी, उसमें 10⁶ केल्विन जितना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, तो ब्लास्ट नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो, उसकी वजह से हम यूज कर रहे हैं कूलेंट. तो दिस इज सम डिफिकल्टीज एंड इट्स सॉल्यूशन. लास्ट थियरी, न्यूक्लियर फिजन. Thermonuclear fission in the source of energy, output in the interior of stars and sun. The interior of sun has a temperature of 1.5 into 10⁷ Kelvin, and which is considerably less than the estimated temperature required for fission of particles of average energy. Nuclear fusion is also called proton-proton cycle, is represented by the following sets of reactions. 1H1 plus 1H1 gives 1H2 plus positron plus positron के साथ क्या होगा, न्यूट्रिनो plus 0.42 million electron volt. Second reaction is, अब ये जो प्रोजिट्रॉन प्रोड्यूस हुए उसको दूर करने पड़ेंगे, तो प्रोजिट्रॉन का रिएक्शन हम करवाए इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोजिट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रॉन, तो आपको मिलेगा चार्जलेस पार्टिकल इज गामा, 2 गामा पार्टिकल्स और 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी. 1H2 जो है वो 1H2 को रिएक्शन करवाओ 1H1 के साथ, तो गिव्स 2He3 प्लस गामा पार्टिकल प्लस 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and 2He3 plus 2He3 gives 2He4 plus 1H1 plus 1H1 plus 12.86 million electron volt. तो ये रिएक्शन के अंदर सपोज आपको 2He3 दो चाहिए, 2He3 दो चाहिए, तो ये जो थर्ड नंबर का रिएक्शन है वो 2 टाइम्स होनी चाहिए. ये रिएक्शन 2 टाइम्स होने के लिए 1H2 आपको 2 चाहिए, तो 1H2 दो आपको चाहिए, तो उसके लिए फर्स्ट रिएक्शन वो 2 टाइम्स होनी चाहिए. अगर फर्स्ट रिएक्शन 2 टाइम्स हो रही है तो 2 प्रोजिट्रॉन कैन बी प्रोड्यूस्ड, सो 2 प्रोटॉन्स प्रोजिट्रॉन को आपको अलग करने के लिए ये भी 2 टाइम्स, मीन्स ईच प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल ऊपर की जो 3 रिएक्शंस है वो 2 टाइम्स होनी चाहिए, एंड लास्ट रिएक्शन बिकम्स 1 टाइम्स. So in one proton-proton cycle, how much helium, how much proton particle, how much hydrogen elements, hydrogen particles can be used? See, 2 to the 4 plus 2 6, तो आपने 6 यूज किए हाइड्रोजन, उसमें से आपको मिलते कितने हैं, 2 वापिस मिल जाते हैं. Each and every proton cycle सन में से नेट 4 हाइड्रोजन फ्यूजन होंगे, 4 हाइड्रोजन, क्योंकि आप 6 यूज कर रहे हो बट लेकिन 2 वापस मिल जाते हैं आपको, तो नेट 4 हाइड्रोजन कैन बी यूज इन ईच प्रोटॉन साइकिल. एंड कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, 26.7. आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0.42 0.42 प्लस 1.02 प्लस 5.49, ये जो 3 रिएक्शंस है वो 2 टाइम्स हो रही है, सो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस लास्ट 12.86, और ये सब का आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा एनर्जी 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ईच एंड एवरी प्रोटॉन साइकिल वी गेट a 26.7 million electron volt. In each 2 light nuclei of helium combine to produce nucleus of helium, and 2 hydrogen will released of 12.86 million electron volt energy. तो ये है न्यूक्लियर फिजन. This is the last topic of this chapter. Next is exercise 13.25. A source containing 2 phosphorus radionucleus
13p32 जिसका हाफ लाइफ टाइम है 14.3 डेज, एंड 13 फॉस्फोरस 32 जिसका हाफ लाइफ टाइम 25.3 डेज. इनिशियली 10% of the days come from how long one must wait until 90% they do so. स्टार्टिंग के अंदर ये 10% है, ये 90% है. स्टार्टिंग के अंदर एट टाइम टी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एट विच टाइम स्टार्टिंग का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 10% में वो 90% हो जाए और ये 10%. तो इनिशियल ई एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ फॉस्फोरस P32 इज इक्वल टू 9x, क्योंकि इसमें से ना 10% डिक्रीज हो जाता है, तो रिमेनिंग पार्ट इज 90%, सो 9x. एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ फॉस्फोरस P32 इज x. एट फाइनल टाइम एट टाइम t इक्वल्स टू t, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब उल्टा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉस्फोरस P32 इज y, and remaining amount of substance in 15p33 वो क्या होगा? 9y. तो पहले एट टाइम t इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला बनाए. फॉर न्यूक्लियस 15p32 फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू n नॉट 1/2 t रेज टू टाउ हाफ. व्हाट इज n? अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल्स टू t. और फॉस्फोरस P32 का टाइम t एट टाइम t इक्वल्स टू t कितना है? y, तो लेफ्ट हैंड साइड y. इनिशियल कितना है? 9x, तो ये 9x. और उसका हाफ लाइफ टाइम 14.3 डेज, तो 14.3 डेज. फॉर न्यूक्लियस फॉस्फोरस 33 अगेन n इज इक्वल्स टू n नॉट 1/2 t रेज टू टाउ हाफ. यहाँ पे एट टाइम t इक्वल्स टू t 9y, इनिशियल x, सो 9y इज इक्वल टू x 1/2 रेज टू t बाई 25.3. दोनों का रेशियो ले लो, y कट x कट, 9 9 जा 81, 1/81. रेशियो ले लो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा एलसीएम लेके. 1/81 दोनों साइड रेसिप्रोकल करो तो 1/2 का 2 हो जाएगा. नाउ टेकिंग log 81, ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना, log 81 पावर मल्टीप्लिकेशन में आएगा 11t डिवाइडेड बाय 14.3 इंटू 25.3 log 2. ये 81 नीचे जाएगा या इसको नीचे ले जाओ, 2 लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो log 81/2, एंड 81/2 यानी 40.5. फिर इसका लॉग आप कैल्शियम में भी देख सकते हो, तो उसका लॉग आएगा 1.90. ये यहाँ पे अलग अलग लॉग दिया है. 1.9085 इज अ लॉग ऑफ 81. लॉग ऑफ 81 इज 1.9085 एंड log 2 इज 0.3010. तो कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 209 डेज. टाइम t इज इक्वल टू 209 days. 209 days.